जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडीओ पहले पेपर का पहला प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडीओ का पहला पेपर सामान्य भाषा से संबंधित है, जिसमें अंग्रेजी के 30 प्रश्न और हिंदी के 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 100 प्रश्न की संख्या रहेगी, 2 घंटा समय अवधि और 100 अंक के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें दोनों अलग अलग विषय में 30% आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने पड़ेंगे। यानी कि अंग्रेजी में आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं, माइनस मार्किंग भी है 1/3, और हिंदी में कुल 21 प्रश्न सही करने हैं। दोनों मिलाकर के कुल 30 प्रश्न आपको सही करने होंगे। इससे संबंधित डिटेल्स में एक वीडियो जब क्रीन पब्लिकेशन का करवा रहे थे टेस्ट सीरीज, उसमें बताए थे। यहाँ ऊपर आपको एक सजेस्टेड वीडियो का क्लिप दिख रहा होगा राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, उसको क्लिक कीजिए, देखिए पूरा वीडियो जाकर के आप लोग। और वीडियो को स्टार्ट करेंगे इससे पहले एक बात बता दूं कि लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो डाले जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले पार्ट में इंग्लिश के प्रश्न रहते हैं, कितने, कुल 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन दिया गया और कहा जा रहा है कि इसको पढ़िए पैसेज को और उसके आधार पर आपको आंसर करना है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। डिफिकल्ट टाइम्स कुड क्रिएट फीलिंग्स इन एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड फियर एज वी नेविगेट थ्रू अंडर सेवरल situations and uncertainties. We find that negativities surrounding the problems consume our mind. It is in those times that we have to exert ourselves to change our perspective and adopt a more positive and solution driven attitude. Wise people have always chosen to leverage adversities as opportunities for growth and progress rather than succumb to navigate throughout pattern. Sant Kabir described how different people respond when challenged by problems. Gold, virtuous people and sons are resilient. You may break them 100 times and yet they will rejoin. In contrast, navigate people and clay pots are fragile. Once shattered, they are broken forever. The distinguishing feature of a successful is that they have a mindset that enables them to remain positive in the face of adversity and even utilize the navigate situation for their benefit. The eagle can touch us a few lessons on this. When the storm starts blowing, it does not cover down before it. It flies to a higher point and waits for the wind to blow over. When the storm sets in, the eagle spreads its wings and uses the draft of the wind to rise higher and higher in the sky. It does not run away from the storm, rather it uses the storm to its advantage. While the storm rages below, the eagle soars above it. The winning attitude to overcome this fear and stress is to realize that advertisers have opportunities inherent in them. The opportunities do not come without problems. Hence, difficulties and obstacles that have a positive side to them as they make us grow from within. A gem gets polished with friction. The finest steel is produced by putting it in fire. Similarly, the more hardships we face, the stronger we become. ये पूरा हमारा एक पैसेज था, इसको पढ़े। अब इसके आधार पे आपको आंसर क्लिक करना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is an ideal way of handling a difficult situation? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ सिचुएशन टू आवर एडवांटेज। अभी आप पैसेज पढ़े थे, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, मेकिंग द बेस्ट यूजेज ऑफ सिचुएशन टू योर एडवांटेज इज एन आइडियल वे ऑफ हैंडलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sant Kabir believed that saintly people, right answer is option C, can regain then their
strength easily. According to Paces, Sant Kabir believed that saintly people can regain their strength easily. Hence, option C is correct. Okay. Next question. When there is a storm, an eagle dash. The right answer is option C. Flies high above it using its force. Very easy. Which of the following is not the message that the passive gives us? Right answer is according to Paces, option A. Those who are positive are fragile and can be easily shattered by difficulties. Okay. Next question. As per the passage, when we face difficult times, the right answer is option B. Our minds gets overcome by negative thoughts. Next question. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. जब आपको हम किरण पब्लिकेशन का सेट करवा रहे थे तो इस तरह के बहुत प्रश्न उसमें देखने को मिले थे, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो टोटल उसमें 10 सेट करवाया गया है, 10 सेट पेपर 1 का और 10 सेट पेपर 2 जो जीएस का है वो भी करवा दिया गया। तो पहले फेज में 10-10 सेट का करवाया गया था और ये दूसरा फेज चल रहा है बीपीएससी एडीओ जिसमें 25-25 सेट करवाए जाएंगे तीनों पेपर के। ठीक है, जाइए उस वीडियो को भी देखिए, सारे पूरे सीरीज बहुत अच्छी सीरीज थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आए थे और इस तरह के नो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उसमें आए थे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है, ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। इस यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, यहाँ पर सही करने की आवश्यकता है। इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ विल अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड बिकॉज एज वेल एज विथ along with besides connect to subjects and the verb from singular or plural is determined by the first subject. Okay, next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. The right answer is option B, is. Very easy. The subject, the children's series, is singular noun, so helping verb will also be singular, that is. Next question. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. चलिए ये है, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ से ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। The doctor came after the patient had passed away. Then pass away, okay, pass away ये यहाँ पर एरर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वर्ब 3 विल बी, ओके, यहां पर हो जाएगा पास्ट अवे। ओके, यहां पर जो सेंटेंस दिया गया पास्ट परफेक्ट टेंस का है जिसमें वर्ब 3 का यूज हेड के साथ होना चाहिए, तो हेड के साथ वर्ब 3 का यूज होना चाहिए। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये एरर हो गया पास अवे, क्या हो जाएगा पास अवे, इसका एरर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पर पास्ट अवे होना चाहिए हेड के साथ, वर्ब 3 का यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पर भी सेम है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर नो नीड चूज करना है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस दिया गया है, शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैन यू पास। ठीक है, क्योंकि कैन यू पास विल बी यूज्ड बिकॉज मॉडल कैन इज यूज्ड पोलाइट रिक्वेस्ट। द करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए कैन यू पास मी दैट पास्ता बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. I just don't like the themes of today's music. Right answer is option C, more than one of the above. यहाँ पर एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि today's will be used because to show possession apostrophe s। ठीक है, इस तरह के देखते होंगे आप लोग, apostrophe s के आगे इस तरह से लगा रहता है किसी भी वर्ड के आगे, तो यूज्ड विथ रिलेटेड नाउन। तो टुडेज म्यूजिक जैसे हो गया ना, टुडेज म्यूजिक ऐसे रहता ना, टुडेज म्यूजिक। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी हो गया। उसके बाद बात किया जाए तो आई जस्ट डोंट लाइक द देम्स ऑफ
टुडेज म्यूजिक। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस बनेगा तब जाकर के ये पूरा चीज क्लियर होगा। तो नो एरर की बात ही नहीं रही, ये भी और ये भी दोनों मिलाकर के वन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। यहां पर क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। चलिए सेंटेंस पढ़िए। Many of the food required for the moving migrant workers is arranged by the state government. Right answer is option C, most of the food. Very easy. Identify the segment in the sentence. यहाँ पर भी select no error choose करना है। At one time birds and animals lived peaceful together. चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो यहाँ पर पीसफुली जो होता है ना, एडवर्ब होता है। पीसफुली अगर होगा तो ये एडवर्ब होगा। तो adverb will be used because adverb is used to modify lived. lived जो है ये verb है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, at one time birds and animal lived peacefully together. The right answer is option A. ये एरर है, एरर चूज करने कहा जा रहा था, तो पीसफुल टुगेदर नहीं होगा, ये पीसफुली होना चाहिए यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहां पर क्या कहा जा रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर आइए। इनफैक्ट क्लेम्बिंग फॉन इन स्प्रेडिंग सोज रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेट्स वर्स्ट इनवेसिव वेड। यहां पर आपको सही आंसर चूज करना है। तो सब्स्टिट्यूट दैट इट्स बाय दैट इट्स। ओके, दैट इट्स। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इनफैक्ट क्लेम्बिंग फॉन इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a sentence have been given with a willing to be filled with an appropriate option, choose the correct alternative। यहाँ पर खाली स्थान में चूज करना है। The school was less than a mile from their home। तो राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी ऑप्शन ए, मोर। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ना, एक चीज क्लियर कर लीजिए, मच या मैनी के जगह क्या हो जाता है, मोर। हम इसके जगह फिर मोस्ट का यूज हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस मोर देन अ माइल फ्रॉम देयर होम। ठीक है, क्योंकि गिवन से यहाँ सेंटेंस दिया गया कंपैरेटिव डिग्री का है, तो मोर यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए देन के। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इमिनेंट। ओके, इमिनेंट, इमिनेंट होगा सही जवाब। चलिए ये अगस्त का है सिनोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जोवियल। जोवियल का हो जाएगा सिनोनिम कौन सा, जॉयस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। इस तरह के प्रश्न करवाए गए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इट वॉज अ हैक्टिक डे फॉर सुसान विथ अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड कपल ऑफ मीटिंग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ या लॉट्स का प्रयोग होना चाहिए। ए लॉट ऑफ या लॉट्स जो होता है, ठीक है, तो कैन बोथ बी यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि ए जो होता है, ए या अ, ये होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर इसके यूज से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इसको यूज करना होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इसको यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। इन द सेंटेंस यहां पर सेम सिचुएशन है, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। चलिए पूरा सेंटेंस ये है, इफ सो मेनी कैसेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव वॉन द मैच। राइट आंसर हो जाएगा हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बीन वुड बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। टाइप 3 पैसिव वॉइस यूज्ड इन इफ क्लाउज। यहां पर अगर बात की जाए, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3 डॉट 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 वुड है प्लस वर्ब 3 का यूज होना चाहिए। अगर प्लूरल वर्ब की बात कहा जाए तो इफ प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3, और यहां पर भी
वुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज होना चाहिए। तो ये राइट आंसर क्या हो गया, हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर एंटोनिम पूछा जा रहा है, अल्जिड, इसका हो जाएगा अपोनेंट, ये हो जाएगा एल्गेज, एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो इंजीनस होता है ये भी होता है मोल्टेन, मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्गी, जो एल्गी होता है, या गैलिल्ड ये भी होता है, तो इसका मतलब एल्गी, ठीक, और ये गैलिल्ड, तीनों हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंजीनस एक्सट्रीम, सॉरी, यहां पर जो है ना, इसको अलग कर दिया जाए ना, तो एल्जिड जो होता है, एक से अधिक मत कीजिए, इग्नियस ही रहने दीजिए, ये सबसे नजदीकी है, तो ये होता है मोल्टेन, मोल्टेन, ठीक है, इस संदर्भ में होता है, बाकी सब तो मिलता जुलता ही है, लेकिन ये सबसे नजदीकी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मेटल का, मेटल का एंटोनिम क्या होगा, तो मेटल का एंटोनिम हो जाएगा, जैसे कि करेज होता है, तो एंटोनिम हो जाएगा कोवार्डिस, कोवार्डिस। बाकी आप चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, देख लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। चलिए, कोवार्डिस की बात अभी कह रहे थे, और पहला ही ऑप्शन है कोवार्डिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, एरर चूज करना है यहाँ पर। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, आर गुड ऑन, यहाँ पर गुड एट का यूज होना चाहिए, गुड एट, ऑन के जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए सेंटेंस पढ़िए, द फार्मर वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लैंडर, सही जवाब हो जाएगा डिप्राइव्ड ऑफ, यहां जो है डिप्राइव्ड ऑफ का यूज होना चाहिए, ये फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन होता है, डिप्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, डिप्राइव्ड के साथ फिक्स है ये ऑफ वाला प्रीपोजिशन, तो यहां पर ऑफ का यूज करके ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डिप्राइव्ड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, यहां पर भी सेम सेंटेंस है, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है, सेंटेंस पढ़िए, मिस मार्वल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट, सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, और नो और द गुड, ठीक है, और द, क्योंकि नॉर के साथ और नॉर यूज होता है, तो ये नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, यहां पर लिखना जरूरी है, बोल दिए काफी इतना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द फिल इन द ब्लैंक, डैश डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नो सूनर। ओके, जो क्योंकि ये को रिलेटिव कंजक्शन होता है, और इसका यूज जो होता है नो सूनर देन इज यूज्ड टुगेदर, इसके साथ होता है, और हार्डली सेकेंडली के साथ व्हेन, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है, तो यहां पर हो गया नो सूनर। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड चूज करना है, कौन सा होगा, तो यहाँ पर एकोमोडेट सामने से दिख गया, एकोमोडेट, यहाँ पर एक और एम का यूज होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर इनफ स्पेस फॉर समबडी टू प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर्ड टू मेक फिक्स, एडजस्ट के साथ इसका यूज होता है, इस संदर्भ में यूज किया जाता है, और अदर ऑप्शन हैव फॉलोइंग मीनिंग, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, तो द आर्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग द बिल्डिंग, इसको आर्किटेक्चर कहा जाता है। एम्बेसडर की बात की जाए, एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, दैट इज एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन, यहां पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड अ डिक्री अगेंस्ट दैट डिसीजन, सही जवाब हो जाएगा इसका, यहाँ पर चार ऑप्शन, a decree had already been passed by the ruler of the community against the ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो गया, तीसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट पहले यूज हो जाएगा, पैसिव वॉइस की बात की जाए, पैसिव वॉइस की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा प्लस
हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट इनडायरेक्ट में अदिति सेड आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी इजी। अदिति सेड दैट शी वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर, वेरी इजी आंसर। यहां पर भी क्या है, मीनिंग कहा जा रहा है, ये इडियम दिया गया है, अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, इसका ये इडियम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a hidden enemy, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये पूरा दिया गया सेंटेंस, ए लार्ज केस बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एवियरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में देखते हैं ना, ए लार्ज केज बिल्डिंग मतलब कि इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स मतलब कि कोई पक्षी को रखने के लिए, तो एवियरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब होता है, और यहाँ पर एपियरी जो दिया गया है, एवियरी और एपियरी संबंधित सेम से है, तो एपियरी क्या होता है कि ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट द मैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग बीज, जो मधुमक्खियां होती है इनको जो रखा जाता है जिस केज में, जिस उसका घर जो होता है केज बना करके मधुमक्खी पालन करते देखते होंगे आप लोग, वो केज जो होता है ना उसको एपियरी कहा जाता है। ठीक, एवियरी जिसमें पक्षी को रखा जाता है जिसको पिंजरा कहते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitute to given group of words। ठीक है, one who hates mankind, right answer is option C। ठीक है, मिसएंथ्रोप, ठीक, ये राइट आंसर हो गया। यहां पर एक है अल्ट्रस्ट, ए पर्सन हु इज अनसेल्फिशली कन्वेंस्ड फॉर द वेलफेयर फॉर ऑफ अदर्स, इसको अल्ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रस्ट के संदर्भ में ये हो गया। और यहां पर वन हु हेट्स मैनकाइंड दैट इज मिसैंथ्रोप। ठीक, 30 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाते हैं, जिसका 30% अगर आप निकालें तो सिर्फ 9 प्रश्न आपको सही करने हैं, वो भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ज्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करना है। 30 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए आप बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। दूसरा पार्ट हिंदी से है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, और हिंदी से जो है कुल 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 70 का 30% पूछा जाए तो 27 21, आपको 21 प्रश्न सही करने हैं, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है इसमें, और इसको ध्यान में रखते हुए 21 प्रश्न सही करने हैं, सब कुछ काट छांट के। ठीक, चलिए हिंदी का पार्ट दूसरा है, इसका भी 70 प्रश्न कवर कर लेते हैं फटाक से। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको यह फायदेमंद होने वाला है। चलिए, जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी, वेरी इजी, ऑप्शन बी जगत जोर इस। रीति के अनुसार संधि के बाद शब्द बनेगा, यह हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, रित्य अनुसार हो जाएगा, क्या होगा, रित्य अनुसार ये बनेगा। तो यहां पर कोई भी नहीं है, रित्य अनुसार होगा, यहाँ रित्या अनुसार दिया गया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, राइट आंसर रित्य अनुसार होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में राइट आंसर दिया ही नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः आई आय अब आव हो जाता है, तो ये कौन सी संधि है। आप लोग ना जाके किरण पब्लिकेशन का टेस्ट कीजिए, 10 टेस्ट में मैंने सारे ग्रामेटिकल फैक्ट्स जितने भी थे, जितने भी इसके बारे में जितने भी परिभाषाएं थी सबको मैंने क्लियर किया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें। 10 टेस्ट को देखिए, बाकी ये तो कंटिन्यू चल रहा है, इसको भी देखते चलिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए आई ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आय आय आव हो जाता है, तो आयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आयादी संधि का उदाहरण है ये, यहाँ आयादी संधि दिया ही नहीं गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ठीक है, ये आयादी संधि हो जाएगा, इस तरह का अगर बनता है ना, एक के जगह कोई स्वर आए तो आय हो जाता है, आई के जगह आय होगा, ओ के जगह अब हो जाता है, और अव आता है तो आब हो जाता है, ये आयादी संधि का एग्जाम्पल है। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्या, छिन्न, जो छिद्रान्वेषी होता है उसको ये कहा जाता है। ठीक, और किसी के गुण दोष की आलोचना करता है उसको क्या कहते हैं, किसी के गुण दोष की आलोचना करते हैं, इसको कहा जाता है
आलोचक हो सकता है, इस तरह के प्रश्न बन सके, इसी से संबंधित ये भी था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वायु अग्नि, अनिल अनल। ठीक। अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, किस अंश का कौन सा अर्थ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंश, हिस्सा, अंश, कंधा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस अंश का कंधा, इस अंश का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हड्डियों का ढांचा। आंख बंद करके भी आंसर क्लिक करोगे तो यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यह हो जाएगा सूर्य, श्वेत, योगी, कोई भी नहीं यूज किया जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि की पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक। ठीक। और भी अग्नि के पर्यायवाचक क्या हो सकते हैं, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। और ये अर्णव है ना, अर्णव किसका पर्यायवाची है? सागर का, जिसको समुद्र कहते हो, समुद्र, सागर, और भी कह लीजिए जलधि, कह लीजिए नदीस, ये सभी जो है ना अर्णव के पर्यायवाची है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये गेह शब्द जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा गृह। ठीक है, यानी आलय, घर, आवास, गृह, निकेतन, निलय, भवन, निवास, वास, या कोई धर्मशाला में शाला लगता है, शाला कहिए, ये वाला शाला। ठीक है, और सदन कह सकते हैं, ये सभी ना गेह शब्द का यानी गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दानवीय। विलोम पूछा जा रहा है, दानवीय। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तम। साहचर्य का विलोम कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन, यहां पर साहचर्य का कोई आंसर ही नहीं दिया गया। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, अलगाव। असहयोग का सहयोग होता है, और वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं है यहाँ पर, है ना, अलगाव होता है साहचर्य का विलोम। ठीक है, अलगाव। प्रामाणिक शब्द के लिए मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? ये हो जाएगा प्रमाण जोर इक। ठीक है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो निरुपसर्ग होगा, निर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। तो ये हो जाएगा किसमें? अमर में। ठीक। अनेक में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा अनुपसर्ग। अतिशय की बात की जाए तो अति उपसर्ग हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है इसका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग लाते हैं, संस्कृत का शब्द जिसको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग लाते हैं और वो हिंदी के शब्द की तरह भांति लगते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तिलक हो गया, अग्नि, सूर्य, माता, पिता, ये सभी है संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का शब्द है, यहाँ पर कौन सा शब्द है विदेशी भाषा का? ये तो कोई नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाथी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, प्रतिबिंब और कुसुम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो हिंदी का कोई है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? सही जवाब है आलू, वेरी इजी। अंग्रेज जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और कैंची और कुली जो है तुर्की भाषा का है। कैंची हो गया या फिर कुली कहते हो ना, ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये तुर्की भाषा का है। ठीक, और अंग्रेज जो है ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, आलू जो है यह पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सही जवाब हो जाएगा अधुनातन। ठीक, इसका अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्द जो है इसके अर्थ है लंबे समय से चलते आ रहे सतत कालखंड, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में देने का भाव है, तो संप्रदान कारक होगा।
ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, किसको देता है, किसके लिए देता है, तो ये देता है सेवक को के लिए अगर आया तो ये संप्रदान होगा। कर्ता ने कर्म को होता है, को यहाँ पर दोनों जगह होता है, तो यहाँ पर देखना होता है बहुत नजदीक से, तो किसी को दिया जा रहा है तो यहाँ पर संप्रदान कारक का उदाहरण है, कर्म क्लिक नहीं करना है। कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के कुल कितने भेद होंगे बताइए, यहाँ पर ऑप्शन पूरा देखिए, कारक के भेद हैं। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि कारक होता है क्या, तो किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा सर्वनाम का वाक्य का अन्य पद जो विशेषकर क्रिया के साथ संबंधित होता है उसको कारक कहा जाता है। और हिंदी में कारक की संख्या 8 मानी गई है। तो यहाँ पर 8 ऑप्शन है, कोई नहीं है ना, तो 8 कारक होंगे, तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कौन से 8 है, तो एक हो गया कर्ता, अभी बता रहे थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह भी बोलते जा रहे हैं आप लोग, सुनिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, ठीक, उसके बाद आता संबोधन, अजी अहो, इस टाइप के ने संबोधन, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन में, अगर जैसे विस्मयादि बोधक होता है ना इस तरह के, तो कहते हैं ना जैसे कि हे राम, तो अजी, अहो, हे, इस टाइप का है ना, संबोधित है, संबोधन वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक को यहाँ पर भी है, को यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है। इस चीज को क्लियर करना है तो आप लोग वो पूरा सीरीज देखिए 10 वीडियो, उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे, डस्ट टेस्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और कभी भी हिंदी में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है वो कौन सी होती है, तो वो कहलाती है अभिसारिका, ठीक है, अभिसारिका। और प्रेम करने वाली स्त्री क्या होती है, ये प्रेम करने वाली को प्रेमिका कहते हैं, प्रेम करने वाली स्त्री प्रेमिका, और छिपकर मिलने जाने वाली अभिसारिका। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, सही से नहीं लिखाया, ये हो गया कर्तृवाच्य, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। सही जवाब है विकल्प बी, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। और यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वो हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाता है। और हेतु का अर्थ होता है कारण, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, किस वचन का जोड़ा सही नहीं होगा, तो यहाँ पर आटा आटे का बोरा सही नहीं होगा। यहाँ पर चलिए ऑप्शन देखते हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अगर बात किया जाए जैसे आटा लिखा होगा, आटे लिखा होगा, एक कोई मतलब बेफालतू का वर्ड हो गया, तो इस तरह के वाक्य आएंगे तो ये सही नहीं होंगे, ऑप्शन में अगर दिया रहे तो। यहाँ पर नहीं दिया गया है। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, ये हो जाएगा कौन सा, वायु। वायु जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, और इस सभी की बात की जाए तो ये सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, यहाँ पर वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाद। वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या कहते हैं, अव्यय, ठीक है, ठीक। क्रिया किसको कहते हैं आप लोग बताइए, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिसको बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। काल किसको कहते हैं, काल बराबर क्रिया का समय, जो काम करने में समय लगेगा उसको काल कहेंगे। चलिए, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, यह हो जाएगा जगाना, ठीक, जगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इनको क्रिया कहा जाता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण चुनने को कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मनोरम जो है उसके विशेषता गुण को बता रहा है। कंठ का विशेषण होगा, कंठ शब्द का,
तो ये कंठय हो जाएगा। तो कंठय यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस टाइप का लिखाएगा कंठय। ठीक है, ये ऑप्शन रहता अगर तो ये राइट आंसर होता है, ऐसे ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। ये वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो, क्योंकि वह लड़का ही है, ये कंफर्म कर दिया गया, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम का पद है, ये हो जाएगा वह। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण। ठीक, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार में कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए, वह इनमें से जो एक को जानता है, तो संज्ञा का रूप यहां पर पहचानने को कहा जा रहा है, ये हो जाएगा उन इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग है, एक, ये संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो है ही नहीं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर एक रहता ना तो ये हो जाता संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध हो जाएगा कवयित्री। ठीक, जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं, और महिला कविता जो लिखती है उसको कवयित्री कहा जाता है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए अंगना। ठीक है, और अंगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, स्त्री होता है। चांद ये अशुद्ध है, शुद्ध अगर लिखे तो कैसे होगा, चांद, चांद इस तरह से लिखाएगा, शुद्ध वाक्य है चांद का इस तरह से। आंख, आंख इस तरह से लिखाएगा शुद्ध, ये अशुद्ध दिया गया है। ओके, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। सही जवाब है योजक चिन्ह। ठीक, जैसे इस तरह से योजक चिन्ह किसको कहते हैं, जोड़ने वाले, जैसे माता और पिता लिखते हैं तो बीच में डालते हैं ना ये डैश जैसा, तो ये योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। ठीक है, यही चिन्ह जो है योजक चिन्ह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम, ये हो जाएगा ये वाला कोमा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ये उत्क्षिप्त। ओके, हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 52। निम्नांकित में से कंठ ध्वनि हो जाएंगी कौन कौन से, तो कंठ ध्वनि होती है क ख ग घ अंग, ये जो होते हैं कंठ ध्वनियां होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। हिंदी की पहली सबाक बोलती फिल्म आरम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। आलम आरा जो रिलीज हुई थी 1931 में रिलीज हुई थी, जो हिंदी की पहली सबाक बोलती फिल्म थी। इसके निर्माता जो थे अरदेशित ईरानी, उनका भी नाम लिख देता हूं मैं, अरदेशित दिर ईरानी जी थे, अरदेशिर ईरानी जी। और 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इसका पहला प्रदर्शन चलाया गया था। कौन सा, मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक, ये हो जाएंगे भगवती शरण वर्मा। और इनके अन्य उपन्यास की बात की जाए तो लिख देता हूं, जैसे पतन हो गया, इंपोर्टेंट है इनका, पूछा जा सकता है। चित्रलेखा, 3 वर्ष, और टेढ़े मेढ़े रास्ते इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया था। टेढ़े मेढ़े रास्ते और आखिरी दाव, आखिरी दाव, ये सभी जो भगवती शरण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। कब, 1955 ईस्वी में। और धर्मवीर भारती की रचना की बात की जाए तो 7 गीत, वर्ष, और ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, इंपोर्टेंट लेखक है ना, इनका रचना जानना जरूरी है। देशांतर,
देशांतर ना अक्सर पूछा जाता है, ये इसको टिक कर लीजिएगा स्टार मार्क में। धर्मवीर भारती की रचना है देशांतर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति किसने लिखी थी? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसही पक्षी बोलही बहु का भाका, करही हुलास देखी के शाखा, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जायसी, जो पद्मावत ग्रंथ में इन्होंने लिखा था। पद्मावत ग्रंथ में ये लाइन इनके द्वारा लिखा गया था, जायसी के द्वारा। ठीक है, और इनके द्वारा जायसी की और रचना की बात की जाए तो अन्य रचनाएं जायसी की कौन कौन सी हो जाएंगी? अखरावट, अखरावट की रचना इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, और चित्ररेखा, चित्ररेखा, उसके बाद कहरानामा। जितना मुझे याद आ रहा है उसको लिख देता हूं, और बाकी बात आप लोग ना एक बार जो जो कभी हैं यहाँ पर उनका गूगल करके उनके जितने भी रचना है सबको एक बार नोट कर लीजिएगा। मसलानामा, कान्हावत, कान्हावत, ये सभी जितना मुझे याद आया मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब बाकी गूगल कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ये आदिकाल की रचना है, और इसके रचयिता जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंदबरदाई, चंदबरदाई। ठीक है, इसी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां पर गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश पढ़िए फटाफट। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 81, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो सही जवाब हो जाएगा गद्यांश के अनुसार भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेखक को क्या दुख है? तो भाई ऐसे पूछ रहा है जैसे कि लेखक को क्या दुख है, मुझे कैसे पता? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग लेखक को दुख होता है कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, और अंतरदर्शित आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता के समान से लेखक ने साहित्यकारों की उर्मिला विषय उपेक्षा, जो अपेक्षा होती थी, उपेक्षा की ओर संकेत किया था उर्मिला की तरफ। यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं लगता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ई। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण से विवाह किया। ठीक, यह बलिदान नहीं दिया बल्कि लक्ष्मण से विवाह किया। चलिए, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो यह हो जाएगा, ये होता है ना, नोटिफिकेशन शब्द का रूपांतरण अधिसूचना होता है। यहाँ पर कोई है ही नहीं जो सही आंसर हो सके, अधिसूचना। ठीक, कमेंट का इंग्लिश क्या होगा? टिप्पणी। कमेंट का हिंदी टिप्पणी, या कमेंट का इंग्लिश टिप्पणी, जैसे कहिए। सार संक्षेपण का, सार संक्षेप का इसको क्या कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, समरी। ठीक, सूचना का इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर कोई है ही नहीं नोटिफिकेशन का, अधिसूचना यदि होता तो राइट आंसर हो जाता। ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
कोई कमाए कोई खाए इस अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति इनमें से निम्न में से कौन सी नहीं है, कौन सी है पूछा जा रहा है ना, है तो ये हो जाएगा अंधा पीसे कुत्ता खाए। आटे डाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, सही जवाब है कौन सा होगा, ये होता है कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव, कष्ट का अनुभव होना। कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया ये आंसर, तो ई ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, कोई नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना ये कहावत है, इसका आशय क्या है, इसका मतलब होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ये क्वेश्चन एक बार किरण पब्लिकेशन का टेस्ट करवा रहे थे, वो तब भी आया था। निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार हैं, चलिए पढ़िए। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। इसमें अलंकार कौन सा है, तो झरनों का पानी लेकर जो ये पूरा है ना, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस अलंकार की ये पूरा है। और उपमेय क्या, उपमान रूप में संभावना व्यक्त किया जाता है जहां पर वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और उपमा अलंकार कहाँ होगा, तो किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान कही जाती है, तो वो होगा उपमा अलंकार। और श्लेष अलंकार के अंतर्गत ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिसमें एक से अधिक अर्थ संश्लिष्ट होते हैं, ठीक। और यमक अलंकार में एक शब्द भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, इस तरह से। तो कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा और प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसी के जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए। ये पूरे जितने भी पूरे लाइन है इसमें, ये पूरे पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करना मन का डाड़ी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें यमक अलंकार अभी बताए थे। यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मन का ये यूज हुआ है, तो एक ही शब्द मन और मन का बार बार, तो होगा यमक। यमक दिया है इसमें नहीं ना, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास दिया भी गया है, ऑप्शन बी, क्योंकि जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वह अनुप्रास अलंकार है, ठीक। इसमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा चौपाई, ठीक। चौपाई इसमें 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और पहले चरण की तुक जो होती है दूसरे से, और तीसरे चरण की तुक से चौथे रूप से मिलती है। तो प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है, यति, ठीक है। तो ये होता है चौपाई। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनिस रूखी। ये पंक्ति है, इसमें कौन सा रस है, तो कैसे कहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी, इसमें ना वियोग श्रृंगार रास, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और क्योंकि हरि दर्शन के लिए आंखें तरस रही है, तो सूर सागर का यह पद्यांश जो होता है गोपियों की तरह दशा का मार्मिक वर्णन करता है, इसका सूर सागर का, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ये हो जाएगा अस्थाई भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, तो ये हो जाएगा कौन सा, श्री कृष्ण के अनेक नाम में, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा होगा, ये हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। दोनों चीज हो रहा है। तुम कहां जा रहे, इस वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। और वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं, इसको भी मैं क्लियर कर ही देता हूं। चलिए, पहला कौन सा होगा, तो विधिवाचक वाक्य, ठीक। दूसरा प्रकार निषेधात्मक वाक्य। तीसरा आज्ञावाचक,
आज्ञावाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा वाक्य कौन सा होगा? तो विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य। छठा संदेहवाचक। संदेहवाचक। सातवां इच्छावाचक। आठवां संकेतवाचक। ठीक है, अब यहां पर क्लियर करते हैं विधिवाचक वाक्य। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो विधि, कोई विधि के अनुसार किताब पढ़ रहा है, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य, जैसे राम विद्यालय नहीं गया, इसमें निषेध की भावना आ रही है। आज्ञावाचक, खड़े हो जाओ, मतलब मेरी आज्ञा का पालन करो, पानी लाओ, ये आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। विस्मयादिवाचक वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ जब कारक बताए थे, वाह इस तरह के, हे राम, ये विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे संदेहवाचक, शायद वह कल आएगा, नहीं आएगा, एक मतलब संदेह की स्थिति बन रही है, तो इस तरह की एग्जाम्पल हो गया। इच्छावाचक वाक्य, तो जैसे कि सदा सुखी रहो, भगवान आपको सफल करे, ये इच्छावाचक, अपना इच्छा जाहिर करना होता है। संकेतवाचक वाक्य की एग्जाम्पल की बात की जाए, तो यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, या अवश्य सफल होगे, ये संकेतवाचक है, एक संकेत इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? समास पूछा जा रहा है, तो अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। और जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उसके समस्त पद से समूह का बोध होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। ये चीजें आपको 10 टेस्ट तो आप लोग देख ही लीजिए, कितनी बार बोल चुका हूं, उसको देख लीजिए, वहां पर सारी चीजें क्लियर कराया है मैंने, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना सही नहीं है। गौशाला में कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गाय के लिए शाला यानी गाय के लिए स्थान, इसका अर्थ होता है, और इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो रूप के अनुसार अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास यहां ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, कोई नहीं। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अकिंचन होगा, ना कि किंचित, अकुंचन और अलभ्य। तो राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्न को कवर कर लिए, मिलेंगे अगले टेस्ट में। आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए, कितने प्रश्न आपके सही हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।